تھر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا کام تھا سمال ڈیمز، تو اس پہ آلریڈی بلینز آف روپیز کے سمال ڈیمز حکومت سندھ کی جانب سے وہ تیار ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں لوگ سیاست کھیل رہے ہیں، لیکن واحد جماعت ہے پورے پاکستان کی، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت سندھ، جو اس وقت سیاست نہیں کھیل رہی ہے۔ جو وعدے حکومت سندھ نے آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے کیے تھے سیلاب متاثرین سے، ہم سیلاب متاثرین کو ان سے کیے ہوئے وعدے اور ان کا حق، جائز حق جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، یہ ہمارا وعدہ تھا، وعدہ ہے، اور اس میں کام بہت ہی سپیڈ سے شروع ہوا۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سیلاب متاثرین تو رہ رہے ہیں سرکاری جو ہے زمینوں پہ، وہاں پہ ان کے گھر تھے، جو سرکاری کوئی کسی محکمے کی زمین تھی، کوئی کس محکمے کی زمین تھی، ریونیو کی زمینیں تھیں، لیکن وہ لوگ بیچارے اپنی جھوپڑیوں میں رہتے تھے۔ تو جن کی وہ جھوپڑیاں گئی ہیں، حکومت سندھ ان کو نہ صرف پکے سیمیٹڈ گھر بنا کے دے رہی ہے، لیکن اس زمین کی ملکیت بھی دے رہی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی چھت اپنی ہے تو ان کی زمین بھی اپنی ہونی چاہیے، اپنی زمین اپنی چھت، اپنی زمین اپنا مکان، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مالکانہ حقوق ہونا چاہیے، اور وہ مالکانہ حقوق بھی اس گھر کی خواتین کے نام پر ہونا چاہیے کہ خواتین کو اس سے امپاور کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے، کیونکہ ہم لوگ اس میں موجود ہیں، ہم احساس کم کر رہے ہیں، ہمارا دھیان جو ہے وہ باقی چیزوں پر زیادہ ہے۔ جو مین چیز ہے کہ جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والی پاکستان پیپلز پارٹی واحد حکومت ہے پاکستان میں، جو لوگوں کو، ان مسکین لوگوں کو گھر دے رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آپ کے لیے کہنا، یہ پریس کانفرنس میں نے 2 الفاظ بول دیے، کوئی بہت بڑی بات نہیں کہ کسی کو گھر دے رہے ہیں، لیکن سوچیں کہ واقعی کوئی ایسا شخص جس کی تیسری اس وقت جنریشن اس پاکستان میں رہ رہی ہے، اس کے پاس اپنی چھت نہیں تھی، اس کے پاس اپنی زمین نہیں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ، اس کا وہ جو خواب تھا کہ کبھی میری بھی اپنی چھت ہو، کہ میری بھی اپنی زمین ہو، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور سندھ گورنمنٹ اور چیف منسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم وہ خواب ان کو پورا کر کے دے رہی ہے کہ ان کو اس زمین کا ٹائٹل بھی دے رہی ہے اور ان کو وہ گھر پکا بنا کے دے رہی ہے۔ اس بات میں پہلا جو تھا جو سیریمنی تھی وہ لاڑکانہ میں ہوئی، جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرسنلی وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے ان معصوم خواتین کو ٹائٹل ڈیڈ دی۔ اس کے بعد کل جیکب آباد میں وہ سیریمنی ہوئی، اور جیکب آباد میں بھی ان لوگوں کو وہ ٹائٹل دیے گئے، اور آج کمبر شہداد کورٹ میں وہ سیریمنی ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے روزانہ کی بنیاد پر مختلف اضلاع میں ان خواتین کو دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے، اب آپ اس زمین کی ملکیت آپ کے نام پر ہے۔ تو جو خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، جو خواب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، جو خواتین کی امپاورمنٹ کا خواب شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا تھا، اور محترم آصف علی زرداری صاحب کا وومن امپاورمنٹ میں خواب تھا جس میں انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، تو آج وہ خواب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ ماضی میں یہ دعوے کسی اور نے کیے تھے کہ جی میں 50 لاکھ گھر لے کر دوں گا، میں جی لوگوں کو دوں گا، کچھ نہیں کیا۔ روزگار آج مل رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دے رہی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ گھر میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے۔ آپ ان خواتین کی آپ چہرے دیکھیں جن کو گھر مل رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں چاہوں گا کہ یہ آپ 1 منٹ کے لیے یہ چھوٹے سے پروموز ہیں دیکھ لیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان خواتین کے چہرے دیکھیں، ان کی آنکھوں میں وہ دیکھیں کہ جی انہوں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سیلاب میں تو چلو ہم ڈوب گئے، لیکن ہمیں دوبارہ کوئی گھر بنا کے دے گا، پکے گھر، اور ہمیں جو ہے وہ ٹائٹل بھی میرا ہوگا، وہ زمین کی ملکیت بھی میری ہو گئی۔ یہ دیکھیں جی، جب ہمیں یہ پتا چلا کہ سندھ حکومت جو ہے ہمیں جو نئی گھر دے رہی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے سندھ کی تاریخ میں یہ بڑا انقلاب ہے۔ بلاول بھٹو صاحب
Gusto ba? Ito nagmamalayan juga pusaranya itu cek kata itu mampu proyek semuanya betul sindikai sidang umat kita. जी हाँ जी ऐसा कि रिस्पेक्ट में माना ये दिन हुआ जी पेरे पराई जगह ही हुई उन्होंने पंजी जगह ही थी माना चेक वगैरह जिन्हों पंजी जगह ही थी तो आप देख रहे हैं कि प्योरली मेरिट पे ना किसी से पूछा जाता है कि भाई तुम वोट किसको देते हो, तुम्हारा ताल्लुक कौन सी पार्टी से है, कौन से मंसलक से तुम्हारा ताल्लुक है। सिर्फ यही देखा जाता है कि भाई आपका घर गिरा है, आपको नुकसान हुआ, तो उसके लिए कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने। उस कमेटी में फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान फौज के नुमाइंदे मेरिट के साथ उन एक एक की बाकायदा जियो फेंसिंग, जो गूगल के मैप्स, शनाख्ती कार्ड, टूटे हुए घर वो दिखाए गए। वो सारे दिखाने के बाद उनको आज एक गवर्नमेंट काम करने जा रही है। तो देखेंगे ये कितना बड़ा काम है। पाकिस्तान इसको इस वक्त किस चीज की जरूरत है? पाकिस्तान को क्या आज उस अफरा तफरी की जरूरत है जो एक पॉलिटिकल पार्टी यहां पे दे रही है? पाकिस्तान को क्या आज उस नफरत की जरूरत है जिसकी आग जलाई जा रही है? क्या पाकिस्तान को आज मजीद इस पोलराइजेशन की जरूरत है जिसकी शुरुआत पीटीआई ने की? नहीं। पाकिस्तान के लोगों को अगर आज जरूरत है तो पाकिस्तान के लोगों को जरूरत है कि उनके जख्मों पे कोई जो है वो मरहम रखे, उनके जख्मों पे नमक ना रखे इर्रिलेवेंट बातें करके, उनके जख्मों पे मरहम रखने का दौर है। जब महंगाई एक हाईएस्ट सतह पे पहुंची है, उस महंगाई के दौर में कोई ऐसा शख्स हो जो उन गरीब मिस्कीनों को, उन मासूम लोगों को बोले कि यार ये छत भी तुम्हारी, ये जमीन भी तुम्हारी, ये घर भी तुम्हें बना के दे रहा हूं। पाकिस्तान के लोगों को इस चीज की जरूरत है। तो वो काम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध दिल खोल के कर रही है। उस जगह पे ये प्रोग्राम में हुआ तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये ऐलान भी किया कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा इंतखाबात के बाद हम अगर इंशाअल्लाह हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम पाकिस्तान के हर सूबे में ये इस तरह के घर बना के देंगे। आपने एक चीज नोट की होगी, सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में भी आया, सैलाब की तबाहकारियां बलूचिस्तान में भी हुई थी, सैलाब की तबाहकारियां पंजाब में भी हुई थी, लेकिन वाहिद सिंध हुकूमत है जो घर बना के दे रही है। बाकी हुकूमतें कहां गई? किसी हुकूमत ने कोई घर नहीं बना के दिया। लेकिन क्योंकि सिंध हुकूमत समझती है, पीपुल्स पार्टी समझती है कि लोगों के मसाइल क्या हैं। लोगों के मसाइल ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे किसके ट्रेंड ज्यादा चल रहे हैं, लोगों के मसाइल ये नहीं कि किसको कितनी बड़ी गाली दी जा सकती है, लोगों के मसाइल ये नहीं कि आप अपने ही मुल्क में अपने ही जो हमारे इदारे हैं उनको आप कंट्रोवर्शियल बनाएं, अपने मुल्क में अपने ही इदारों के सरबराहों को कंट्रोवर्शियल बनाएं। ये लोगों का मसाइल का हल नहीं है। अपने ही मुल्क के खिलाफ आप पूरी दुनिया में साजिशें करें, ये लोगों के मसाइल का हल नहीं है। हां, लोगों के मसाइल का हल क्या है कि आप उन गरीब मिस्किनों को बोले कि जी हां हम आपको ये घर दे रहे हैं। घर बहुत बड़ी चीज होती है। किसी भी शख्स के पूरा ख्वाब जो होता है जिंदगी में वो उसका घर होता है। आप सब भी यहाँ पे मेरे दोस्त बैठे हैं, सहाफी दोस्त, आप लोगों को भी इस चीज का एहसास होगा कि किसी भी एक मिडिल क्लास आदमी के लिए भी घर जो है उसकी क्या कीमत होती है, क्या उसके लिए वैल्यू होती है। यार मुझे लाइफ टाइम के लिए मेरा घर मिल गया, मुझे मेरे बच्चों को एक छत मिल गई लाइफ टाइम के लिए, ये बहुत बड़ा एक रिलीफ होता है, जो कि मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला पीपुल्स पार्टी के जो बाकी खैबर पख्तूनख्वा के हमारे रहनुमा हैं, पंजाब के रहनुमा, बलूचिस्तान के जो रहनुमा हैं, वो भी यही बात कर रहे थे कि कब ये बाकी सूबों में भी चीज बनेगी। तो उन सब लोगों के लिए ये है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी और चेयरमैन बिलावल इंशाअल्लाह जैसे ही वजीर आजम बनेंगे तो ये घर हर सूबे में बनेंगे, ये घर हर तहसील में बनेंगे, ये घर हर गांव में बनेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के लोगों के उन जख्मों पर मरहम रख सकें। यही पीपुल्स पार्टी की कोशिश है, यही पीपुल्स पार्टी का मकसद है। जी ये बताइएगा कि अब आपकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी तो मौलाना फजल रहमान साहब टीवी पे आए और क्योंकि आपने दावा किया है कि आने वाली अवामी हुकूमत आपकी होगी, तो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि
ना हमने जाली हुकूमत अभी तस्लीम की है और ना आने वाली जाली हुकूमत को तस्लीम करेंगे। क्या फजल रहमान साहब को पहले ही पता चल गया कि आपकी हुकूमत जाली होगी? देखें जी, मौलाना साहब काबिल एहतराम हैं और हमें उनके लिए दिल से हम उनका एहतराम करते हैं। आप उनके बयान को किसी दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि जाली हुकूमत नहीं होगी, नहीं तस्लीम की उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। तो उनके बात का मकसद मैं आपको बताऊं जो आप नहीं समझ सके हैं। उनका मकसद ये है कि आइंदा इलेक्शन भी शफाफ हो, फेयर हो, और जिस तरह 2018 में धांधली करके इमरान खान को हुकूमत दी गई, आरटीएस बिठा के दी गई, आइंदा इस तरह के काम ना हो। अच्छा, ये सर सवाल ये है, प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी बनती है माशाल्लाह। मुझे तो ये लग रहा है कि एक लॉलीपॉप आप सिंध के लोगों को दे रहे हैं कि हम आने वाले दौर में दोबारा मतलब आपको मुंतखब करें और दोबारा आकर आप घर बनाएंगे। अब तक कुछ भी नहीं हुआ, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। ये चंद घर आपने कोई अनाउंसमेंट अभी से शुरू कर दी है, लेकिन लोग जो है वो बेचारे एक साल इंतजार कर करके कहीं से इधर उधर से जमा पूंजी किराया या तो किराए के मकान में या कहीं से उधार पकड़ के कोई दीवार बनाकर बैठ गए। तो ये मतलब ये क्या है, वक्त पर फौरी आप लोगों ने मदद क्यों नहीं की लोगों? अच्छा, मेरे ख्याल से या तो आप वाकई कराची से बाहर जाते नहीं हो। नहीं, अब सवाल करें, मुझे जवाब देने दें। आप कराची से बाहर मेरे ख्याल से जाते नहीं हो। उसकी वजह बता दूं। अगर आप कराची से बाहर वाकई जाएं तो जो लाखों की तादाद में लोग जब सड़कों पे आए थे ना, आपने कहा उस वक्त फौरी मदद क्यों नहीं की? उन लाखों की तादाद में जब बारिशें भी पड़ी हुई थी और जब लकड़ी भी गीली थी, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने लोगों को वहां जाके कुक्ड फूड दिया, बिला रंगो नस्ल दिया और हर जगह पहुंचाया गया। फिर उनको वहां से रेस्क्यू किया गया लोगों को, फिर लोगों को राशन बैग दिए गए, टेंट्स दिए गए, हर चीज दी गई। और जहां तक आप बात करें, अभी भी मैं कह रहा हूं, आपने शायद नहीं गए, ये घर हम तो पर्सनली देख कर आए हैं, आप नहीं गए, आप जाके देखें कि लोगों ने वहां पे घर अपने बना रहे हैं। हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है, कोई भी चीज मफरूजों पर नहीं है कि कितने घर दिए गए, कितने लैंड टाइटल दिए गए, तो ये हर चीज के रिकॉर्ड मौजूद है। अब अगर किसी को खाली वो एक तनकीद ही करनी है तो उसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है। पहले अकरम साहब, अब ये बता दें कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही है। क्या मैनिफेस्टो है पीपल्स पार्टी का? किन नारों के साथ वोट देने पीपल्स पार्टी जाएगी और क्या मॉडल, रोल मॉडल क्या है? अच्छा, ये हेल्थ के अलावा जो 2-4 आप लोगों ने हॉस्पिटल अच्छे बनाए, उसके अलावा क्या रोल मॉडल है जिसको लेकर आप आवाम में जाओगे वोट लेने? प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत सबके सामने है। अभी जिस तरह शर्जील साहब कह रहे थे कि जो घर हैं वो बना के दिए जा रहे हैं, दूसरे सूबों में ये काम नहीं हुआ, और हम जब हुकूमत बनाएंगे तो दूसरे सूबों में भी ये काम किया जाएगा। मेरे एक मोहतरम दोस्त ने कहा कि ये सिर्फ बातें हैं और कुछ हो नहीं रहा। देखें, 20 लाख से ज़ायद घर हैं और उसके लिए जो फंड्स चाहिए उसमें सिंध गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा दे दिया। आपको याद होगा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टैंड लिया था कि जो वफाकी बजट है उसमें जो वायदे किए गए थे उन पर अमल नहीं हुआ, और जो लोगों के घर बनाने में जो 3 हिस्से थे, एक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और एक था जो हमारे डोनर्स ने हमें पैसे देने थे। तो सिंध गवर्नमेंट ने अपनी किटी से डेवलपमेंट स्कीमें भी रोक कर यहाँ पे पैसे हमने दिए, लेकिन आपने देखा जब चेयरमैन साहब ने स्टैंड लिया तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने पैसे उसके लिए रखे, और ये पूरा एक प्रोसेस था। 20 लाख घर कोई कम नहीं होते, उनकी हर तरह से जियो टैगिंग की गई, तस्वीर ली गई, एक एक सर्वे किया गया, अब वहाँ पे वो काम शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा आपने देखा कि हेल्थ फैसिलिटीज़ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ सिंध में ही है, और वही फैसिलिटीज़ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाएंगी। फिर आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रोग्राम हैं एम्पावरमेंट के, पॉवर्टी रिडक्शन के, तो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो SRSO और इसी तरह की दीगर इंटरनेशनल NGOs के साथ मिलकर सिंध गवर्नमेंट कर रही है, ताकि
جو لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, اپنا کاروبار کر سکیں, مختلف جو چھوٹے چھوٹے ان کے, یہ پورے ملک میں اس چیز کو پھیلایا جائے گا. اور بھی بہت ساری اسکیمیں ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بات